Today we'll read about tribal revolts. तो हम लोगों ने सुना कि so many tribals were there. One Gujjar, Kuki, Khasi, Gaddi, Hond, Santhal, Munda, and they were very much upset from the British rule because Britishers declared the forest also as a state property. So tribals lost their job, their livelihood, etc. They became homeless, they became jobless. So they were now exploited by the Britishers also. How? When they moved to the jungle and for what? For Jagat, mic off karo. For searching livelihood or searching some different suitable place. There were no laborers for cutting the logs or rearing silkworm. There was a shortage of laborer. Then Britishers started tempting them by giving some money that do this work for me, I will give it to you. Good morning, ma'am. Sell this much cocoon to me, I'll give you this much rupee. For example, 1000 cocoon for only 3 rupees. And after taking it from the tribals, they sell it any other place 5 times more than that price. It means ki 5 3 jo 15 rupees. It means ki 15 rupees में 1000 cocoon वो बेचते थे. When the tribals came to know this fact, they immediately think that these middlemen were not our friend, they are our enemy. ये थी कहानी. पीयूष आ चुका है, दोबारा से पीयूष आ रहा है. मैम क्या? मैम दो पीयूष है में 2 पीयूष है. अच्छा ठीक है. मैं सोची कि 2 पीयूष कहाँ से आ रहा है. ठीक है. नो मैम. ओके. मैम हम लीव हो गए थे तो दोबारा ज्वाइन किए. ठीक है. चलो. So now they started doing revolts. The commercialization of agriculture and exploitation of forest wealth made many tribals homeless and jobless. The unjust policies of the British resulted in rebellions by tribals in different parts of India. Revolt by the Khasi, who lived in the Khasi hills of northwest Assam, took place in 1829. The construction of a road through their land united many Khasi chiefs against the English under the leadership of Bar Manik and Tirut Singh.
कभी कभी लीडर्स के नाम भी पूछे जाते हैं। तो किसके अंडर में खासी यूनाइट हुए? बारमणिक एंड तिरुत सिंह। एक सड़क बनी थी, जो सड़क बहुत खासी चीफ को यूनाइट किया, मतलब कहीं आना जाना डिफिकल्ट था, उन दिनों की बात है। तो अगर सड़क बन गए, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन या रोडवे बन गए, तो लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने लगे। तो खासी चीफ वहां से सब लोग यूनाइट हुए। किसके अंडर में? तो बारमणिक एंड तिरुत सिंह के अंडर में। बट मैंने कल ही बताया था आपको, अभी किसी ने मैसेज किया, देखी नहीं, क्या मैसेज किए? दोबारा भेजो। What is the meaning of rebellion? विद्रोह। rebellion. विद्रोह। Rebel means revolution. Rebel means rebellion, rebel, सब के एक ही मीनिंग है बेटा। रेवोल्यूशन, विद्रोह, ठीक। लेकिन कल ही मैंने कहानी सुनाया था कि जितने भी रिबेल हुए, रिवोल्ट हुए, इट वॉज सप्रेस्ड बाय द ब्रिटिशर्स। उसको सप्रेस कर दिया गया, उस विद्रोह को दबा दिया गया। मतलब कि ये लोग कुछ खास अंग्रेजों के खिलाफ कर नहीं सके। देन Kukis of hilly regions of Manipur continued attacking the British territories. ये लोग ब्रिटिश टेरिटोरी पे अटैक करने लगे from 1829, but they were forced to surrender in 1850. लेकिन उन लोगों को मजबूरन 1850 में मैंने मजबूर किया गया कि सरेंडर कर दो। फिर क्या हुआ? Khonds of Khond Mals near Odisha revolted against the British in 1846 due to the fear of being annexed, but they could not stand fear before the might of the Britishers. क्या बोल रहा है कि इन लोग भी, खॉन्ड भी क्या किए? वो भी रिवोल्ट किए। उनको भी डर था कि कहीं ब्रिटिशर्स उन्हें एनेक्स्ड, उनको भी अपने में मिला न ले, तो ये लोग रिवोल्ट किए। लेकिन इट वाज आल्सो सप्रेस्ड बाय द ब्रिटिशर्स। ठीक है। देन अब आती है संथाल्स की बारी। Santhals found themselves quite helpless against the ruthless exploitation and operation of the traders and the middlemen. वो जो middlemen थे, इन लोग से काम करवाकर थोड़े से पैसे दे रहे थे, जो अब इनका नए तरीके से एक्सप्लॉयटेशन शुरू किए थे, उनके अगेंस्ट में ये अपना ऑपरेशन स्टार्ट किए। They were expecting the British government to safeguard their interest. इनको लग रहा था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट इनकी मदद करेंगे, मिडिल मैन से इनको बचाएंगे। बट ब्रिटिश गवर्नमेंट क्यों करेंगे? वो तो चाह ही रहे थे कि ये लोग जंगल छोड़कर चले जाए, जंगल हमारी संपत्ति हो गई। तो when nothing was done, they revolted against the Britishers. In 1855 to 1856, under the leadership of सिद्धू एंड कान्हू मुर्मू। तो संथाल के लीडर हुए सिद्धू एंड कान्हू मुर्मू। ठीक है। और फिर अब है मुंडा ऑफ छोटा नागपुर। मुंडा के कौन हुए लीडर? बिरसा मुंडा। मुंडा के लीडर कौन हुए? बिरसा मुंडा। तो मुंडा छोटा नागपुर joined by the Kolarian tribe of the same region
revolted in 1831. The struggle was suppressed by the British forces, but the exploitation by the merchant and the money lenders continued. अब आती है बिरसा मुंडा का रोल. इस पे शॉर्ट नोट्स लिखने दिया जाता है, 5 मार्क्स का होता है. बिरसा मुंडा पे शॉर्ट नोट लिखने दिया जाता है एग्जाम में, जो कि 5 मार्क्स में 5 मार्क्स उसकी वेटेज होते हैं. In 1895, Birsa Munda, a young boy, emerged as hero of tribals. He urged them to continue to work on their land to earn their living. इन्होंने कहा अपनी जमीन पर तुम काम करते रहो. इन्होंने बाकी मुंडाओं से कहा. And not to move away. यहाँ जमीन को छोड़कर मत जाओ. This would end all their sufferings. इससे सारी विपत्ति हम लोगों पर जो आई है वो दूर हो जाएगी. As the Birsa movement spread, जैसे जैसे तो ये क्या हुआ, ये ब्रिटिश के खिलाफ नाफरमानी हो गई ना. उन लोग तो जमीन को, जंगल की जमीन को स्टेट प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिए थे, तो अब तो इनका हक नहीं रहा था जमीन पर. बट ये अपनी जमीन छोड़ नहीं रहे थे, उस पे अपनी खेती बाड़ी कंटिन्यू कर रहे थे. तो he told his people that land policies of the British were destroying their traditional land system. उन्होंने अपने लोगों को समझाया कि ब्रिटिश की जो लैंड पॉलिसी है, इनकी ट्रेडिशनल सिस्टम को नष्ट कर दे रहे हैं, डिस्ट्रॉय कर दे रहे हैं. तो अगर कोई इतना खिलाफ बोलेगा तो उसको तो छोड़ नहीं दिया जाएगा. तो बस बिरसा वॉज जेल, उसको जेल में डाल दिया गया फॉर 2 years. बट ऑन हिज रिलीज, जब उसको जेल से छोड़ा गया, ही इंस्टिगेटेड द ट्राइबल्स टू अटैक जमींदार्स. उसने फिर ट्राइबल से रिक्वेस्ट किया कि जमींदारों पर अटैक करो. He raised the white flag. एक क्वेश्चन आएगा, what was the symbol of Birsa Raj? तो white flag. White flag. It was the symbol of Birsa Raj. And this movement ended in 1900 with the death of Birsa Munda. उनके डेथ के साथ ये मूवमेंट का अंत हो जाता है. अब है इफेक्ट्स ऑफ कोलोनियलिज्म ऑन क्राफ्ट एंड इंडस्ट्रीज. कोलोनियलिज्म की अभी तक हम लोग क्या पढ़े, इफेक्ट पढ़े, ट्राइबल्स पे क्या इफेक्ट हुआ. अब पढ़ेंगे कि क्राफ्ट और इंडस्ट्री पे क्या इफेक्ट हुआ. So, with more and more parts of urban and rural India coming under the rule of East India Company, क्या कह रहा है, और ज्यादा urban areas, rural areas, all are coming in the hand of the British. Means they were capturing more and more urban and rural areas. Who? British. ठीक है. The exploitative character of the British rule was exposed. अब किसी से छुपा नहीं रहा. वो जो दोस्ती करते थे इंडियन प्रिंस से कि आप आर्मी रखो, मैं आपको हेल्प करूंगा, दूसरे प्रिंस और किंग से आपको बचाऊंगा, ये जो दोस्ती करके
फिर धीरे धीरे उनके राज्य को एनेक्स कर लेते थे। करते 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 जब इतने दिनों तक उनके जो एक्सप्लॉयटेटिव कैरेक्टर थे वो एक्सपोज हो गया। आप छुपा नहीं रहा किसी के सामने। आपको ये नहीं सोचा कि दे आर आवर फ्रेंड, दे केम हियर टू हेल्प अस। दे इमीडिएटली अंडरस्टूड दैट नो नो नो, दे आर आवर एनिमी। समझ में आया? The company's monopolization of trade, लिखो मोनोपोली मतलब एक बार और बताई थी, होल सोल राइट, एकमात्र अधिकार। दोबारा से कह रही हूं, होल सोल राइट, WHOLESOLERIGHT, होल सोल राइट, एकमात्र अधिकार of trade was getting stronger। उनका ही एकमात्र अधिकार चारों तरफ फैलता जा रहा था। किनका? कंपनी का, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का। हाँ, कोई कुछ पूछना चाह रहे हो? बोलो। मैम एक और उसका मतलब बताइए ना। क्या बता दे? मैम मोनोपोलिस्ट का मतलब। मोनोपोली का मतलब होल सोल राइट, WHOLESOLERIGHT, राइट, होल सोल राइट। थैंक यू मैम। ठीक है। अच्छा, फिर क्या हुआ कि although agriculture was the main occupation, there was no dearth of handicrafts, calico, muslin, wool and silk products। ये सब भी इंडिया में बहुत अच्छे थे। मसलिन, वुलन सारे आइटम्स, सिल्क प्रोडक्ट, कैलिको, हैंडवर्क, हाथों से जो बनते थे, वो जो मसलिन बनते थे, मलमल बनते थे, वो पूरे थान के थान अंगूठी के अंदर से घुस जाता था। इतने सॉफ्ट हुआ करते थे। ये रिंग के अंदर से पूरे नहीं होता है, एक थान में कितने होते हैं, कई मीटर कपड़े होते हैं। जाते हो शर्ट बनाना है, पैंट बनाना है, इतना मीटर चाहिए, इतना मीटर चाहिए, वे लोग ऐसे ऐसे खोलते हैं और फिर कटिंग करके आपको देते हैं। तो थान के थान वो उस अंगूठी से घुस जाता था, इतने सॉफ्ट होते थे। तो उन लोगों ने उनके ये राइट हैंड के ये अंगूठा कटवा लिया ताकि वो इतना अच्छा चीज वो बना नहीं सके, ताकि इंडियन हैंडीक्राफ्ट रुइन हो जाए। तो मेटल वर्क्स ऑफ आयरन, स्टील, कॉपर, ब्रास, गोल्ड एंड सिल्वर वर आल्सो इन ग्रेट डिमांड। इन सब चीजों की मोटा मोटी ये कह सकते हो कि इंडियन सारे प्रोडक्ट, सारे चीज के डिमांड थे यूरोपियन कंट्रीज में। तो देयर ट्रेड वाज फ्लोरिश्ड बिकॉज दे गॉट इजीली ऑल दिस थिंग्स फ्रॉम इंडिया एट अ वेरी लो कॉस्ट। And they left behind all their rivalries। अपने सारे प्रतिद्वंदियों को उन्होंने पीछे छोड़ाया था। आपने कब का पढ़ा है कि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी डिसॉल्व हो चुका था और कंपटीशन में इतने सारे यूरोपियन ट्रेडर्स आए थे, लेकिन इतने आगे तक कौन पहुंचा? सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिशर्स। In the 17th century, trade with European nations was in favor of India, as we exported large quantities of। इस लाइन पर जरा ध्यान देना, क्या कह रहे हैं कि 17th century तक ट्रेड विथ यूरोपियन कंट्रीज, इंडिया और यूरोपियन कंट्री का जो ट्रेड था, दिस वाज इन फेवर ऑफ इंडियंस। वो इंडियंस के फेवर में थे। क्यों? बिकॉज वी वेयर एक्सपोर्टिंग ए लार्ज क्वांटिटी ऑफ फाइन कॉटन, सिल्क फैब्रिक, स्पाइसेस, इंडिगो, ड्रग्स,
precious stone and handicraft. But unfortunately, बदकिस्मती से, the company's policy, कंपनी की पॉलिसी ने led to the destruction of Indian crafts, cottage industries and artisanship. इन लोगों की पॉलिसी ने उस चीज को बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर दिया। अब हमारा कुछ ट्रेड नहीं रहा, उनकी मोनोपोली सेटअप हो गई, उनको प्रॉफिट होने लगे। We were exploited physically and economically, both. To safeguard the British cotton industry, Indian silk and cotton textiles were destroyed. ब्रिटिश कॉटन इंडस्ट्री तो खूब फ्लोरिश हो गई थी, ये बार बार तुम्हें कह रहे हैं, क्योंकि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 1750 में ही हो चुका था। इतने सारे मशीन्स इन्वेंट हो चुके थे कॉटन से रिलेटेड, तो इनकी कॉटन इंडस्ट्री बहुत ज्यादा फ्लोरिश हो रही थी। तो अब क्या हुआ कि उसको इन लोग सेफ गार्ड देने के लिए इन लोगों ने क्या किया कि कॉटन, इंडियन सिल्क, ये सबको वो डिस्ट्रॉय कर दिए। इंडियन सिल्क और कॉटन टेक्सटाइल, इंडियन कॉटन टेक्सटाइल और सिल्क को ये डिस्ट्रॉय कर दिए विथ इम्पोजिशन ऑफ वेरी हेवी ड्यूटी, बहुत ज्यादा हेवी ड्यूटी, बहुत ज्यादा टैक्स लगाकर ऑन इंडियन गुड्स। जब टैक्स ज्यादा लगते हैं तो सामान की कीमत बढ़ जाती है, और जिस सामान की कीमत बढ़ती है ये सीसॉ का रिश्ता है। व्हेन प्राइस इंक्रीज देन डिमांड डिक्रीज, when price increase, demand decrease, and when price decrease, demand increase. ये सी शॉ का रिश्ता है, ये इकोनॉमिक्स है, 9th में जाकर पढ़िएगा। तो क्या हुआ कि अपने कॉटन इंडस्ट्री को सुरक्षित रखने के लिए, टू सेफगार्ड देयर कॉटन इंडस्ट्री, Indian silk and cotton textiles were destroyed. कॉटन टेक्सटाइल को कैसे डिस्ट्रॉय किया? सारे कॉटन को, रॉ मटेरियल को ही खरीद के ले गया, तो बहुत लो प्राइस में, और यहाँ पे बने हुए ब्रिटिश गुड्स को, कॉटन गुड्स को फ्लडेड द इंडियन मार्केट। इस तरह से कॉटन टेक्सटाइल को नुकसान पहुंचाया। और सिल्क को कैसे नुकसान पहुंचाया? वो ट्रेडर लोगों से, सॉरी ट्राइबल्स लोगों से जबरदस्ती सिल्क वॉर्म, कोकून, ये सब रेयर्ड करवाकर कम कीमत पर उसे खरीदकर अधिक दामों में बेचने लगा। Promotion of British machine made articles at cheaper rates and decrease in the princely patronage. Changes in the British trade policy forced the Indian craftsmen and artisans to give up their traditional livelihood. क्या कह रहा है कि प्रिंसली पैट्रोनेज, तुम लोग 7th क्लास में पढ़े हो कुछ किंग्स के बारे में कि दे वेयर द ग्रेट पैट्रन ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर, आर्किटेक्चर। तो उन राजाओं के समय क्या बना हुआ था? उन राजाओं के समय खूब ज्यादा टेम्पल्स बने थे, आर्ट में बहुत तरक्की हुई थी, लिटरेचर में बहुत तरक्की हुई थी। जिन लोग लिटरेचर में लिखते थे, पोएम हो, पोएट हो, उन लोगों को रेस्पेक्ट दिया जाता था, प्रेस्टीज दी जाती थी, प्राइजेस दी जाती थी, रिवॉर्ड्स दिए जाते थे। तो पैट्रोनेज मीन्स लवर ऑफ आर्ट, आर्किटेक्चर, माने जो जिस चीज के हो। तो अब जो है ये इंडियन ट्रेडर या क्राफ्ट्समैन को कोई भी प्रिंसली पैट्रोनेज नहीं मिल रहा था। कहां से मिलेगा? इंडियन प्रिंस अब रहे कहां जो
इन सब चीजों को संरक्षण प्रदान करेंगे। और फिर चेंज हो गया पॉलिसी में। किस पॉलिसी में? तो ब्रिटिश ट्रेड पॉलिसी में। अब ब्रिटिश लोग इंडियन गुड्स पे हेवी टैक्स इंपोज करने लगे, तो इसकी कीमत बढ़ गई, इसकी डिमांड घट गए। फोर्स्ड द, आप इससे मजबूर होकर इंडियन क्राफ्ट्समैन एंड आर्टिसन अपने काम छोड़ दिए और ट्रेडिशनल लाइवलीहुड को वो छोड़ दिए। बस इंडियन इंडस्ट्री डिस्ट्रॉय हो गई। No doubt the Industrial Revolution 1760 to 1830 in Britain and other European countries was responsible for deindustrialization. तुम लोगों ने पढ़ा de-urbanization मतलब destroy the old cities. De-urbanization मतलब पढ़ा था destroying the old cities. अब क्या वर्ड यूज कर रहा है? De-industrialization मतलब कि destroying the industry, old industries of India. किसने शुरू किए? ब्रिटिशर्स लोग शुरू किए। कैसे शुरू किए? By adopting different policy। और मेन पॉलिसी क्या थी? मेन रीजन क्या बन गया? Industrial Revolution, which was started in England first। सबसे पहले इंग्लैंड में शुरू हुआ और टाइम दे दिया है, हम कह रहे हैं अराउंड 1750 AD, यहां दिया है 1760 to 1830 में स्टार्ट हुआ। All these factors started the process of ruining the traditional handicrafts and the decline in the national income of India। हमारे देश का नेशनल इनकम में गिरावट आने लगी। अब कुछ मॉडर्न इंडस्ट्री सेटअप हुए इंडिया में। The impact of our national movement for freedom and international developments opened the gates of modern industries in India। नेशनल मूवमेंट, ये देखो, ये पहले की बात नहीं है। इम्पैक्ट ऑफ नेशनल मूवमेंट, जो नेशनल मूवमेंट हुए, नेशनल मूवमेंट अभी तुम लोग पढ़े भी नहीं हो। नेशनल मूवमेंट बहुत बाद की बात है, जो नन कोऑपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, दांडी मार्च, और फिर क्विट इंडिया मूवमेंट, और बहुत सारे मूवमेंट हैं जो कि इंडियंस ने किए टू मेक इंडिया फ्री, इंडिया को आजाद करने के लिए। तो उसका जो इम्पैक्ट हुआ, उसका जो रिजल्ट हुआ, उससे इंटरनेशनल डेवलपमेंट जो हुए, उसने इट ओपन्ड द गेट ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री इन इंडिया। इसने वो रास्ता तैयार कर दिया कि इंडिया में अब मॉडर्न इंडस्ट्री सेटअप हो। फॉर एग्जाम्पल, ये बार बार कह रही हुई, पहले की बात नहीं है। समय देखो, इम्पैक्ट ऑफ आवर नेशनल मूवमेंट। अभी हम लोग बहुत पीछे, रिमोट कंट्रोल में बहुत ही पीछे चल रहे हैं और ये बहुत आगे की बात है ना? समझ रहे हो? अभी तो बैटल ऑफ बक्सर हुआ, पलासी हुआ, फिर क्या कहते हैं, मैसूर गया, महाराष्ट्र गया, फिर ट्राइबल लोगों के साथ जंगल चले गए। अभी फिर हम लोग ये भी नहीं पढ़े हैं कि सिपाही म्यूटिनी हुआ, सिपाहियों ने विद्रोह किया, वो भी पढ़े नहीं है। उससे और आगे जाकर ये नेशनल मूवमेंट स्टार्ट हुआ था और फिर उसके रिजल्ट के इम्पैक्ट ये हुए कि नया नया इंडस्ट्री इंडिया में सेटअप करने लगे। टी बिकेम द बिगेस्ट प्लांटेशन इंडस्ट्री इन असम, बंगाल एंड साउथ इंडिया। कहाँ कहाँ टी इंडस्ट्री बने? बंगाल में, असम में और साउथ इंडिया में। So much so that कि Indian tea topped the
the world market and England became its biggest buyer. और इंग्लैंड ही इसके सबसे बड़े क्रेता बन गए. क्रेता मैथ्स में पढ़ते हो एसपी एंड सीपी एंड एसपी, कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस. तो ये बन गए बिगेस्ट बायर, खरीदने वाले. The other plantation industries were coffee, सिनकोना एंड रबर. सिनकोना एक ड्रिंक होता है जिसको शायद हिंदी में कहवा कहते हैं. कहवा वो ठंड से बचने के लिए शायद इन लोग पीते हैं. शायद कश्मीर में ये चीज होता है, लोग पीते हैं कहवा. यस मैम. हाँ, तो इंडस्ट्रीज लाइक कॉटन, जूट, आयरन एंड, अब देखो अब ये सब भी डेवलप करने लगे. कॉटन, जूट, आयरन इंडस्ट्री. आयरन इंडस्ट्री कहाँ हुआ? देखो फॉर एग्जाम्पल विद द एक्सपेंशन ऑफ रेलवे. रेलवे कब आया था? 1854 में. लॉर्ड डलहौजी ने 1854 में यहाँ पे रेलवे लाए. तो उससे क्या हुआ? डिमांड फॉर कोल, कोयले की डिमांड बढ़ी. आयरन एंड स्टील की डिमांड बढ़ी. ठीक है, क्योंकि स्लीपर वगैरह और बहुत कुछ बनाना है, रेल को चलाना है, फ्यूल चाहिए. इट वॉज बिकॉज ऑफ फार साइटेडनेस, दूरदर्शिता की वजह से, एंड डिटरमाइनेशन ऑफ जमशेदजी नौशेरवानजी टाटा. वर्ल्ड क्लास फेमस कंपनी लाइक टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी. जो टिस्को, आपने हेवी इंडस्ट्री में पढ़ा है कि नहीं पढ़ा याद नहीं आ रहा. पढ़े हो? अभी तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री पढ़े ही नहीं हो. टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, ये कहाँ है? किसी ने देखा है? किसी ने कोई वहां गया है? जमशेदपुर में है. मैं गई हूँ, साक्षी, जमशेदपुर. टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी भी वही है और टेल्को भी वही है. टिस्को एंड टेल्को. तो वो किन्होंने किया? वो इंडियन थे. जमशेदजी नौशेरवानजी टाटा, उन्होंने सेटअप किया. वर्ल्ड क्लास फेमस इंडस्ट्री विद द पैसेज ऑफ टाइम. समय के साथ साथ और क्या क्या सेटअप? सीमेंट, केमिकल एंड सुगर इंडस्ट्रीज वाज आल्सो डेवलप्ड. बट वी हैड टू इंपोर्ट मशीनरी. तो अब लेकिन अभी तक हमको इंपोर्ट करना पड़ता है. क्या? मंगवाना पड़ता था फ्रॉम अब्रॉड. मशीनरी, हेवी मशीनरी हमें अभी भी फॉरेन कंट्री से इंपोर्ट करना पड़ता था. इट वॉज ओनली आफ्टर इंडिपेंडेंस दैट बेसिक, और लेकिन इंडिपेंडेंस जैसे हम लोग इंडिपेंडेंट हो गए तो बेसिक और की इंडस्ट्री को प्रायोरिटी दी गई, जिससे कि हेवी इंडस्ट्री भी हम लोग वो भी बनाने लगे, मशीनरी भी हम लोग बनाने लगे. बेसिक एंड की इंडस्ट्री को प्रायोरिटी दी गई. मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में ही आप लोग ये सब पढ़ोगे कि बेसिक और की इंडस्ट्री क्या है. फिर और भी तरह तरह के टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज आप लोग पढ़ोगे. तो ये हो गया मॉडर्न इंडस्ट्रीज इन इंडिया. और ये पेज हमने कल ही आपको ये कंपैरिजन तीनों रेवेन्यू सिस्टम के मैं बता चुकी हूँ. यहाँ पे की वर्ड में आपको कुछ वर्ड दिए हुए हैं. रिजर्व फॉरेस्ट, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, डिप्लोमेटिक, कमर्शियलाइजेशन, कोएर्सिव. ये कोएर्सिव का मतलब है यूजिंग फोर्स टू परसुएड पीपल. परसुएड मतलब मना लेना, फोर्स यूज करके लोगों को मना लेना. टू डू समथिंग, प्यार मनुहार से नहीं मनाना, मजबूरन जबरन मना लेना. टू डू समथिंग दैट दे आर अनविलिंग टू डू, जो कि वो करना नहीं चाहते थे. अनविलिंग टू डू, ठीक है. और ट्राइबल, a group of or community often of related families
who live together, sharing the same language, culture and history, especially those who live, ट्राइबल का वही मतलब है, those who lived in forest.